Hello children, today we will do the first unit of GK book, that is language and literature. In this first topic is with the difference. Let's see what is in it. There are many words which have same sound but different spellings and meanings. For example, some, SOME some and SUM some. आपने इसमें देखा दोनों का sound same है, some, but spelling is also different and meaning is also different. SOME some, SUM some. तो सम मतलब कुछ, SOME सम मतलब कुछ, SUM सम मतलब जोड़ना, हम एडिशन करते हैं उसे सम कहते हैं, है ना. तो these type of words which are having the same sound but different spellings and meanings are called the homophones. So here we learn some words which are having the same sound but having different spellings and meanings. So let's start with the first word BAIL, बेल. बेल मतलब किसी भी पर्सन ने कुछ क्राइम किया है तो उनको पैसे देकर बेल पर छुड़ाना, उनको बेल पे छुड़ाना, तो दैट इज़ BAIL, बेल. एंड BALE, बेल मतलब समथिंग टू टाइट टुगेदर, बंडल बनाना, जिसे हम बंडल कहते हैं. तो BALE, बेल मतलब बंडल. क्लियर. देन नेक्स्ट इज WAIT, वेट, मतलब हमें पता है इंतज़ार करना, वेट. देन WEIGHT, वेट मतलब वजन, 5 kg 6 kg लाइक दैट, वजन, वेट, WEIGHT. देन नेक्स्ट इज सीरियल, CEREAL, सीरियल मतलब grains. For example, wheat, rice, barley, these all are the cereals. And SERIAL, सीरियल मतलब हम जो टीवी में सीरियल देखते हैं ना, एपिसोड्स में कोई भी स्टोरी है उसके दे आर हैविंग मेनी एपिसोड्स, तो उनके बहुत सारे पार्ट में उसको डिवाइड किया जाता है, तो वो पूरा एक सीरियल है. देन PRAISE, प्रेज मतलब किसी की तारीफ करना, प्रेज. देन PRAYS, प्रेज मतलब प्रार्थनाएं. देन WRITE, राइट मतलब लिखना, RIGHT, राइट मतलब सही और दिशा भी, है ना. FAIR, फेयर, फेयर मतलब जैसे फन फेयर होता है उस टाइप का, फेयर. एंड FARE, फेयर मतलब भाड़ा, किराया. देन WEATHER, वेदर मतलब मौसम. देन WHETHER, वेदर मतलब नहीं तो, वेदर यू हैव टू डू दिस और दैट, मतलब या तो ये करना है या वो, तो वहाँ पर हम ये WHETHER, वेदर लगाएंगे. देन ROOT, रूट, रूट माने पेड़ के रूट्स है ना, जैसे ट्री के देखो यहाँ पर रूट्स है, दिस इज रूट्स. देन ROUTE, रूट मतलब रास्ता. देन ALOUD, अलाउड मतलब बहुत तेज. एंड ALLOWED, अलाउड मतलब आपको अलाउ करने की सहमति देना. देन स्टेयर्स, STARES, स्टेयर्स मतलब घूरना. देन STAIRS, स्टेयर्स मतलब सीढ़ियाँ. ओके. देन कम टू द नेक्स्ट पेज. हियर इज़ समथिंग कॉमन, कुछ चीज़ें ऐसी है जो कॉमनली यूज़ होती है सबके लिए, किसी एक के लिए बहुत सारी चीज़ कॉमन यूज़ होती है. जैसे some sets of words are given below, each set refers to something specific. Using the help box, write what these sets refer to. अब देखो jazz, pop, rock, classical, these are the type of music, ये सब म्यूज़िक के टाइप हैं. देन स्कल्पचर, मोज़ेक, पेंटिंग, कोलाज, तो ये सब क्या है, आर्ट फॉर्म्स जिसमें कलाकारी होती है. दिस इज़ ऑल आर आर्ट फॉर्म्स. चिली, कोल्ड, वार्म, रेनी, ये सब वेदर है, मौसम. देन फ्लाइट, वॉयज, ट्रिप, टूर, वो सब जर्नी.
देन एरोबिक्स, योगा, सिटअप्स, पुशअप्स, ये सब एक्सरसाइजेस। स्कूबा डाइविंग, विंड सर्फिंग, वाटर सिकिंग, वाटर पोलो, ये सब वाटर स्पोर्ट्स हैं। देन लियो, ज़ोडिएक, लियो, पाइसेस, लिब्रा, स्कॉर्पियो, ये ज़ोडिएक साइन मतलब राशि जिसे हम कहते हैं राशि। पेल, pastel, deep, bright, these are the color shades, color के अलग अलग shades हैं। Then dentist, psychiatrist, general physician, these are the doctors. Then nibble, munch, chew, swallow, ways of eating, किस तरह से खाते हैं वो, these are the ways, different ways of eating. Then come to the next page. Here books and authors. अब यहाँ पर कुछ बुक्स दिए हैं. Author means who has written that book, means writer of that book. The pictures of some famous books are given below. Write the names of their authors, मतलब लेखक जिसने लिखी है ये book, with the help of the given clues and help box. Help box is also given here also. Alice Wonder, Alice World, that is written by Lewis Carroll. Then this book is written by Grimm brothers. Then Gulliver's Travel, Jonathan Swift. Then Malgudi Days is written by R.K. Narayan. Then Satyarth Prakash is written by Swami Dayanand. Then Winnie the Pooh is written by A.A. Milne. Then Ugly Ducklings is written by Hans Andersen. Then Harry Potter is written by J.K. Rowling. So, do you know, bibliophile is a person who collects books. जिनको बुक्स रीडिंग का हॉबी होता है, जिनको बहुत शौक होता है, वो अलग अलग टाइप की बुक को कलेक्ट करते हैं, अपने पास कलेक्शन रखते हैं, तो दैट पर्सन इज कॉल्ड bibliophile. Okay, then come to the next page. Here is with values and wisdom. Read the wisdom saying carefully and write the values associated with them. Take help from the help box. अब देखो, well begin is half done. ये कहा जाता है कि अच्छी शुरुआत हुई जिस काम की, तो उस काम का आधा काम तो वहीं कंप्लीट हो गया. तो well begin is half done means start work properly. मतलब हमेशा हमें अपना कोई भी काम अच्छे से स्टार्ट करना चाहिए. अच्छी शुरुआत हुई तो आपका काम वहीं आधा कंप्लीट हो जाता है. लुक बिफोर यू लिव मीन्स हमेशा अगर आप कहीं से भी गिरने वाले हैं, मतलब मुसीबत आने से पहले वी शुड बी केयरफुल, तो हमें हमेशा केयरफुल रहना चाहिए. टुमारो नेवर कम्स, कल कभी भी नहीं आता है ना, तो हमें आज के लिए ही जीना है. मीन्स ऐसा नहीं कि आज के लिए ही जीना है. अगर हम किसी भी काम को जैसे टालते जाते हैं कि आई विल डू द वर्क टुमारो, तो टुमारो कभी नहीं आएगा. सो हमें वॉट एवर द वर्क वी आर हैविंग, डू इट एट प्रॉपर टाइम एंड टुडे ओनली. आज का काम आज ही कर लेना चाहिए, क्योंकि टुमारो नेवर कम्स. फिर आप कल फिर बोलोगे आई विल डू द वर्क टुमारो, तो फिर वो कल आएगा, तो वो कल तो आना ही नहीं वाला है. सो लिव फॉर टुडे. वेयर देयर इज अ विल देयर इज़ अ वे, मतलब जहाँ चाह है वहाँ राह है. सो बी स्ट्रांग एंड डिटरमाइंड, हमें हमेशा एकदम स्ट्रांग रहना चाहिए और डिटरमाइंड रहना चाहिए, पक्का निश्चय करके काम करना चाहिए. एवरी क्लाउड हैज़ सिल्वर लाइनिंग, मतलब हमेशा पॉजिटिव रहिए, थिंक पॉजिटिव. एज यू सो शैल यू रिप मीन्स जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे. तो एक्शन एंड रिजल्ट आर लिंक्ड, मतलब हम जो काम करते हैं, हम जैसा कर्म करते हैं, हमें वैसा ही फल मिलता है. सो एक्शन एंड रिजल्ट आर लिंक्ड टुगेदर मीन्स आज हमें जो भी फल मिल रहा है वो हमारे कर्मों का ही फल है, काम का ही फल है. So I hope you understand up to this page number 4. You have to complete these pages in your GK book only. Okay? Bye.